گفتگو تار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو ہے تار کی، کتنی پیاری میٹھی میٹھی گفتگو ہے تار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود السلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ یا اللہ عز و جل، اگر مجھ سے قولی اکیلی کفر ہو گیا ہے تو میں اس سے بیزار ہو توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ وفات کے وقت اس طرح کے کلمات کہنے والے کی فضیلت بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ یہ سعید عطاری مدینہ شریف میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے آخری کلمات یہ مجھے ملے تھے کہ انہوں نے وفات سے قبل یہ اس طرح توبہ کی، دعوت اسلامی کی برکت ہے، انہوں نے اس طرح سرکار کے کرم ہو گیا، یہ کلمہ پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا، توبہ کی، تجدید ایمان کیا، کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بہرحال بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ سعادت کیا سعادتوں کی تدفین بھی جنت البقیع میں ہوئی، الحمدللہ، تدفین بھی جنت البقیع میں، کیا بات ہے۔ یہ بڑی یعنی کہ بڑے نصیب کی بات ہے، ان کو یہ ایسا رتبہ ملا۔ میں ان کے تمام خاندان والوں کو اب یار مبارکباد تو دے نہیں سکتا نا، ویسے حقیقت تو یہ کہ یہ بڑی یعنی کہ بہت پیاری موت ہے، تاہم میں سنت یہی ہے کہ تعزیت کرنی چاہیے۔ تو میں ایسے یہ موت بڑی سونی موت ہے، یہ ایمان افروز موت ہے، لیکن قابل رشک موت ہے۔ کاش مطلب ہمیں بھی اسی طرح مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ آقا کے جلووں میں موت آئے، وہ بھی شہادت کی صورت میں آئے، تو کیا بات ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہ مدینہ شریف کے ذمہ دار تھے اپنے دعوت اسلامی کے، اب مبلغ تھے سعید بھائی، حاجی سعید عطاری، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ کریم ایسی ایمان افروز موت ہمارا بھی مقدر کر دے کہ ایمان و عافیت کے ساتھ۔ خیر یہ ایمان و عافیت کے ساتھ میں یہ دعا میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ تو کیونکہ یہ جس طرح گئے نا اس شان سے، تو ہمارا حسن ظن ہے کہ ایمان پر ہی گئے ہوں گے، تو حسن ظن رکھنا بھی چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں۔ تو یہ کہ ہم کو بھی اس طرح ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں موت آ جائے مدینے میں، جتنا رشک کیا جائے اس موت پر وہ کم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد میں الحمدللہ ہمارا عظیم مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہے، اور اس کے باہر ایک تختی لگی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس کا سنگ بنیاد وغیرہ رکھا، اور ساتھ میں 8
कम सिन सजिद साहिबान थे, तो 8 कम सिन सजिद साहिबान से क्या मुराद है और इनसे इफ्तिताह करवाने की हिकमत भी इरशाद फरमा दीजिए। सबसे पहले तो आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना का इफ्तिताह हुआ था, उसमें भी हमने यही तरकीब की थी कि 12 सैयदजादे अब थे, उसमें 12 सैयदजादे 12-12 साल की उम्र के तलाश किए जाए। अब यार ये तो काम मिलेंगे अपने को 12 साल के सैयदजादे और 12 वो भी 1-2 दिन पहले तो कहा होगा ये तलाश करने, मैं इफ्तिताह नहीं करूंगा। मैं यार गुनाहगार मतलब, और इतना बड़ा फैजान मदीना का आलमी मदनी मरकज, और मैं क्या इफ्तिताह करूंगा, ये शहजादे करेंगे, आले रसूल करेंगे इफ्तिताह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक समझो कि एक रस्म पड़ गई सैयद बच्चों के साथ इफ्तिताह की। ये दावत इस्लामी की तारीख का पहला वाकया। अब ये कि ये फैसलाबाद 92 में ये हुआ है। अब देखो हमारे यहाँ तो कतबा वगैरह लगा हुआ नहीं है फैजान मदीना आलमी मदनी मरकज में, कोई यादगार नहीं है। ये फैसलाबाद वाले माशाल्लाह इन्होंने कतबा लगा कर यादगार रखी है। अब ये शायद सदियों तक ये यादगार रहेगी कि फुला तारीख को इफ्तिताह हुआ था। आइए ढूंढे इसको कि एक तारीख में रकम हो जाए। सैयद कितने थे ये भी ढूंढे, 12 थे, मिले नहीं मिले, तो 12 मिल गए हों अपने को, एक ही अदद हमारे लिए मुतबर्रक अदद है 12 का। 12 सैयदों के हाथ ये इफ्तिताह हुआ, तो एक आइंदा नस्लों को भी पता चलेगा कि भाई सैयद की भी कोई अहमियत होती है। लीडर तो अपना नाम चाहता ही है और अब आप उसके भाई मेरे हाथ से हो, लेकिन ये दावत इस्लामी है जो सैयदों को हाईलाइट करती है। सैयद क्यों हाईलाइट करती है? आले रसूल है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, बीबी फातिमा की आल है, हसनैन करीमैन की आंखों की ठंडक है। इसलिए हम इनको मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब हमारी होती है। अच्छा चलो, जब भी हो तो वो बात सरदाराबाद की फैसलाबाद की हो रही थी, तो फैसलाबाद में वही सैयदों की तो अर्ज कर दिया मैंने, आले रसूल तो हमने आगे किया। और वहां मैं वुजू खाने पे बैठा हुआ था, यानी मैंने इफ्तिताह जो किया शायद वो वहां पहली नमाज से किया था इफ्तिताह, ऐसा ही है। 96 में पहली नमाज से हुआ था, जो मुझे याद पड़ता है कि 96 में 92 में खाली मैदान में। जी हाँ। अच्छा 12 लिए नहीं था 92 में, 96 में साथ था आपके। अच्छा आप थे साथ। तो 96 में मैं वुजू खाने पर बैठा हुआ था, तो एक परों वाले जो मंडराते हैं ना परवाने, एक परवाना मेरे हाथ पे बैठ गया था और उसने मेरे हाथ पे काटा था। इस वक्त ये जख्म बिल्कुल, इसका निशान जो है ना ये अब दब गया लगता है। मेरा निशान ये जमाने तक यादगार रहा था। अब भी देखो ये वही है कि नहीं, वो बहरहाल वो शायद ये निशान है, परों वाले कीड़े ने काटा था मुझे, पता नहीं वो क्या उसने भी निशानी छोड़ी है। ये यूं यादगार रही मेरी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई थी वहां। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा मेरे सुन्नत ये मैसेजेस आए हैं कि आपने ये जो कलाम लिखा था सुन्नत की बहार आई फैजान मदीना में, तो ये कलाम हैदराबाद फैजान मदीना ही के लिए लिखा? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल, ये तो याद है मुझे। हाजी मुश्ताक ने पढ़ा था कलाम, ये भी मुझे याद पड़ता, हाजी मुश्ताक ने पढ़ा था ये कलाम। जी मुझे एक नातख्वां ने फरमाइश की थी हैदराबाद के, अब मुझे नाम भूल गया उनका, ये कलाम आप मुझे लिख कर दें। तो फिर ये तय हुआ कि हाजी मुश्ताक उस वक्त ज्यादा नुमाया थे, हमारे मुबल्लिग भी थे बड़े, और तो फिर ये कि भाई चलो ये पढ़ देंगे। और नातख्वान की फरमाइश पर लिखा था मैंने, सुन्नत की बहार आई फैजान मदीना में।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। या सैयदी मोहम्मद बिलाल अत्तारी मदनी अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त काहिरा इजिप्ट में हूँ। आपका सफ़र मदीना बज़रिया सफ़ीना 1990 या 91 में हुआ, उसका कोई दिलचस्प वाक़या इरशाद फरमा दें। मदीना शरीफ में 90 या 91, ये मुझे याद नहीं है, एक बार सफ़ीने में गए ज़रूर है। सफ़ीने में जाने का कोई यादगार वाक़या न सफ़ीने के जरिए मदीने जाना, ये खुद यादगार वाक़या है। इसकी तारीख आपने याद रखने की कोशिश की है, सन याद रखने की। मुझे 90 याद पड़ता है। काफिला शहीद मस्जिद से गया होगा कि वो वहां से करीब पड़ता है बंदरगाह। मैं कहता हूँ अगर ये मंजर रिकॉर्ड हो जाता ना जौहरी अहले सुन्नत का जहाज की तरफ जाने का था, तो आज भी मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों लोग आंसू बहाते हैं कि ये मदीने जाने का कैसा अंदाजा। ये लोग रोते रोते गिर गए थे और क्या मंजर था। तो मुझे मैसेज इम्तियाज भाई का भी आया कि सफीना शम्स था। जब सफीना चला था ना, तो उस वक्त 1 या 2 दीवाने जो थे वो समुद्र की तरफ दौड़े थे और लोगों ने पकड़ लिया। ये सब सुना था कि अगर ना पकड़ते तो ये शायद समुद्र में कूद जाते, बेकाबू थे। फिर कुछ किश्तियां भी साथ चल रही थी, वो दूर तक पहुंचाने के। अजीब मंजर था यार, बहुत रिक्कत अंगेज और पुरसोज मंजर था। इसका एक यादगार वाकया मुझे जो याद रही है, मुझे जद्दा शरीफ में किसी ने कहा था, किसी हाजी ने जो सफीने में था, उसने कहा था कि आप लोगों के साथ जो काफिला था उसमें एक हाजी की तबीयत खराब हो गई थी। अब उसकी तबीयत कैसी है? तो मैंने कहा कि उस वक्त उसकी तबीयत अच्छी थी, अब खराब हो गई है। अब ये आंटी तो शायद ना समझे, तो कर मैंने फिर वजाहत कर दी थी कि ज़ाहिर कि जब वो एक ज़ौक़ की कैफियत हो, रिक्कत तारी हो, तो वो तबीयत अच्छी होती है ना, खराब थोड़ी होती है। फिर रिक्कत खत्म हो गई और बंदा वो फिर गफलत का शिकार हो गया, तब तबीयत तो खराब कहलाएगी ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो वो बहरहाल कलाम की अमीर सुन्नत उसी में लिखा गया था ना, ऊंचा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। मदीने में लिखा गया था या मक्के से पहुंच के लिखा गया था? खुशा झूमता जा रहा है सफीना, तो ये उस वक्त सफीने में लिखा था। हाजी अमीन नाथख्वा और एक और दीवाना था, इरफान। अल्लाह, ये सा दीवाना था, ये तो 100 दीवाना था। चल मदीना का मुतालबा भी नहीं था। तो मैंने कहा अभी आ गया तो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए, इसको बगैर मुतालबे के हमने साथ रख लिया था। माशाल्लाह वो शरीफ था, अल्लाह इसके सदके हमको बख्शे। पता नहीं जिंदा है कि नहीं, अब तो देखा ही नहीं है, जमाना हो गया इसको। ये दोनों अपने तौर पर सफीने में आ गए थे और हाजी अमीन तो मेरे गले पड़ गए कि मैं अब आपके साथ रहूंगा। भाई ये तो है कैसे है? तो खैर वो किसी तरह भी इन्होंने वहां कहलवा लिया, फिर हमारे साथ सफर में रहे थे। बहरहाल वो बड़ा पुरकैफ सफर था। और जो उस वक्त जब ये ऐलान हुआ था कि अब एहराम बांध लो, और जो मतलब मनाजिर थे ना, एहराम बांध कर जो हुज्जाज अपने अपने उससे निकल कर बाहर आ गए थे, कमरों से, इससे उससे, और जो लब्बैक की सदाएं उठ रही थी। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना ये टेलीफोन में कोई सी सर्विस थी। अंदर की खबर आ गई है। और मजे की बात यह है कि आपके जहाज के जो क्रू, जो अमला था, सीमैन, उसकी तरफ से, यानी उनके बेटे की एक कॉल आई है कि अंदर का मंजर क्या होता था जहाज के अमले की तरफ से, समझ ले इत्तला आई है। अल्लाह अल्लाह। एक सीमैन बड़ी मोहब्बत करने लगे थे और खिदमत करते थे हमारी। फिर इन्होंने एक बार मुझे कहा तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मुखालफतें की, मुझे पता नहीं था तुम लोग ऐसे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अंदर सीमेंट थे वो। गलतफहमी उनकी दूर हो गई, खाली देख कर ही दूर हो गई। सीमैन के बेटे जो है हमारे रिजवान भाई हैं, मुबल्लिग दावत इस्लामी भी है, और उनके वालिद साहब ने उनको क्या बताया था, उनका तो इंतकाल हो गया है। आइए सुनते हैं।
अब्दुल हबीब भाई ये जो सफ़ीने जो ज़िक्र थी रहियो आहे न ये मुंहिंजा वालिद साहब सीमेन हुआ सफ़ीना अरब हुई और सफ़ीना हुजाज शायद नाम हो मूंखे यादि आहे वालिद जब इंतकाल थी वियो वालिद साहब बताना हुआ कि बापा आविया हुआ मतलब बापा मुंहिंजा वालिद साहब उन जहाज़ में ही हुआ कुरू हुआ सीमेन हुआ तो बाप मुझे वालिद साहब ये बयान करे था कि यार वालिद साहब ने बयान किया ये मतलब मुझे कैप्टन हिली वियो कि यार जिंदगी भर पां सफ़र करे आहियूं हाजी के गिनी भी आहियूं एरो शख्स ऐं नए रहियो कि बंदो केर है जो सवाल अची ने ठक ठक करीने मतलब नमाज में लोगों को उठारे तो वालिद साहब बता क्या ये हाजी हजरत साहब हुआ कि लोगों के फजर जी नमाज से उठाना हुआ वो कैप्टन हिली वियो कि जिंदगी थी भी अज तक पाके कोई एरो कोई हाजी ना आवे जो पाके जहाज में उठानो हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी कोई वाक्य आ जाए बता ही दिया कि ये जो है ना अमीर अहले सुन्नत जो है ये फजर के लिए लोगों को उठाते थे और कैप्टन भी हैरान था कि हमने इतनी बार हम हाजियों को लेकर गए पहली बार ऐसा शख्स देखा है जो लोगों को फजर के लिए भी उठाते हैं यानी सदाए मदीना लगाते थे। और अमीर अहले सुन्नत का ये अंदाज सीखने को मिल रहा है कि 7 दिन सफर में रोजे भी हुए बाजमात नमाजें भी हुई दरसो बयान भी रहा हज का तरीका भी सिखाया गया और ये नात ख्वानी वगैरह का सिलसिला सफर में भी ये सारे काम जारी रहे। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे और हमें भी सफर हज हो या कोई भी सफर हो उसमें नेकियां करने की तौफीक अता और अब्दुल हबीब भाई हमारी बैठ के बापा ने वहाँ पर मुझे ये तक याद है बैठ के हमारी तरबियत फरमाई थी कि देखें हम सफ़ीने में हम हज के लिए जा रहे हैं मगर हमारा जो मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है इंशाअल्लाह इसको भी हम पूरे सफ़र में पेश नज़र रखते हुए नेकी की दावत देते रहेंगे। सफीने में बस वो सफीना धूम पड़ी हुई थी 2 मस्जिदें थी सफीने में 2 मस्जिद एक मस्जिद पर हम लोग थे हिसाब किताब हमारा था हम ही लोग नमाजें पढ़ाते थे इतना बड़ा सफीना था 7 दिन आने में 7 दिन जाने में दोनों में इफ्तारी सहरी माशाल्लाह बड़ी यादगारें हैं और सफीने में और अभी भी तो बहुत सारी बातें हैं बाद में भी हो सकता है याद आए। इसमें एक वाकया ये भी हुआ था मैं आप ऊपर के हिस्से में थे हम लोग नीचे वाले के उसमें थे तो ऊपर से मैं आपके साथ एक दिन था मैं जब नीचे आने लगा तो सीढ़ी से वो जब जहाज पानी का यूं और यूं हुआ तो मेरी एक बैसाखी निकली तो मैंने दूसरी तरफ से वो पाइप को पकड़ा वो पाइप में शबनम थी तो वो मैं घूमा और नीचे जाके गिरा ना तो नीचे 2 जाने सोए हुए थे वो तो उठ के भागे ये आया क्या हमारे जहाज में और वो जो भागे हैं अच्छा इसके बाद मेरी तो निक्सोर जो थी नाक से वो नक्सीर इतना खून बहने लगे कि मैं जब भागकर ऊपर यानी बैसाखी के बगैर लोट पोट करके ऊपर पहुंचा तो आपने देखा आपने कहा या गौस पाक ये क्या हो गया मैंने कहा मैं गिर गया तो आपने कहा चलो मेरे बाथरूम में आओ और पानी का नलका है ना इसके नीचे सर रख दो मैंने कहा नहीं मैं आपके बाथरूम में जाऊंगा ही नहीं आपका बाथरूम नापाक हो जाएगा मैं जाऊंगा ही नहीं आपने कहा सब माफ़ है आप चले जाओ अब चले जाओ फिर मैं दूसरे के उसमें गया फिर वो जो तौलिया था ना जिससे मैंने अपना खून पहुंचा था तो आपने जहाज़ के अमले के मेन आदमी को बुलाया और आपने फरमाया कि ये तौलिया जो है ये आप पहुंचने के लिए देते हैं हमारे भाई गिर गए थे तो इन्होंने खून साफ कर लिया तो इसके एक्स्ट्रा जो भी पैसे हैं वो आप हमसे अलग ले लेंगे। इस बात से वो इतना मुतासिर हुआ कि कई अमले के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज से मुरीद भी हो गए। मोहम्मद फैज़ान अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मदनी काफ़िले की इब्तिदा कब से हुई और मदनी काफ़िले को शुरू करने का क्या सबब बना और इब्तिदान ये कितने दिन का हुआ करता था इसके बारे में कुछ तफसीलन इरशाद फरमा दीजिए। पहले तो हम मदनी काफिला नहीं बोलते थे पहले तो एक ही वो वफ्द बोलते थे हम पहले इसको वफ्द बोलते थे दौरा हाँ तो ये हाजी बकीर रजा जो थे सर वो 4 दिन का मदनी काफिला इन्होंने शुरू किया मुजीद इसके ये है ये मुजीद है इन्होंने शुरू किया 4 दिन का और मैं इनके साथ 4 दिन के लिए गया गुज्जो हम बस वो चंद ही इस्लामी भाई थे जो हम गुज्जो गए और गालिबन गुज्जो में हमारे साथ शायद हाजी इरफान मूसा भी थे वो भी थे अच्छे जो मेरी इत्तला है वो भी हाँ और हम लोगों ने मिलकर वो यार कुछ हम जाते हैं लोगों को दावत देने के लिए नेकी की दावत भी पता नहीं उस वक्त इस्तिलाह
छत बन गई थी इस तरह कि नेकी दावत देने जाते हैं तो क्या बोले यार, जाकर कुछ बोले तो सही इनको, और ऐसा बोले कि जैसे कि वो ना भी आए तो कुछ उनको पैगाम हमारा नेकी की दावत पहुंच जाए। तो फिर वहीं उसी 4 दिन के मदनी काफिले में हमारी मुशावरत हुई कि यूं लिखो, तो हम ये शायद मैं ही लिख रहा होता हूँ, तो वो कि यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए, हाँ भाई यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। फिर इसको मैंने सोच समझ कर अपने गौर करके, वो दालिफ्त अहले सुन्नत और ये कोई तो था नहीं उस वक्त, जामियातुल मदीना भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, नवा दौर था हमारा। तो ये मैंने लिखा इसको अपने हिसाब से जो भी समझ में आया। तो यूं मतलब ये कि ये नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। ये तो बहुत बाद में हुआ कि यार अब इसको मुख्तसर करो, ये बहुत तवील है, अल्फाज भी कुछ हार्ड थे उसमें, तो इसको फिर और आसान करके चंद सत्रों में हमने किया। एक तो मैंने काफिला ये अटेंड किया था, वो गुज्जो वाला, गुज्जो में दावत इस्लामी का तारुफ था, और मेरी तरकीब ये थी, मैंने साहब भाइयों को बताया था कि आप मेरा तारुफ नहीं करवाना, कोई मेरे चप्पल नहीं उठाए, कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना कि लोग मुझे पहचानते हैं, पहचान लेंगे तो फिर हम ये जदवल नहीं चला सकेंगे। था वो गांव था, ये मेरा ख्याल था कि यूं करेंगे। तो वहाँ एक वाकया बड़ा यादगार हुआ था, एक इस्लामी भाई, हो सकता है अल्लाह के रब भी माहौल में, उस वक्त तो शायद वो शेव्ड थे मेरा ख्याल है, ये मिल गए थे, पहचाना उन्होंने भी नहीं था। वो बोलते थे कि मुझे आना है इज्तिमा में, इलियास कादरी से मिलना है, उससे मिलना तो बहुत भीड़ होती है। वो यूं बेचारे कर रहे थे और मैं बिल्कुल यानी कि हंसी दबा कर दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था, और आखिर तक हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया कि जिससे तुम मिलने वहां जाना चाहते हो उससे तुम मिल चुके हो। तो पहले सोशल मीडिया तो नहीं था ना, ये अपना मदरी चैनल था जो सबको पता हो मेरा चेहरा। तो ये एक दिलचस्पी थी। हमारे उस आखिरी इज्तिमा में इशा की नमाज के बाद मेरा मरकजी बयान, मेरा बयान था। तो 4 आदमी थे शायद, तो 3 बच्चे थे, जो टोटल 7 नफर। मैं बयान कर रहा था, किसी ने मुझे कड़ी दिखाई थी शायद कि मौलाना बहुत टाइम हो गया, जल्दी टुकी करा। तो हमारा लिए कि वो गुज्जो का वो हुआ, जब फिर गुज्जो में शोहरत हुई कि ये इतिहास आया और 4 दिन हमारे साथ रहकर चला भी गया है। तो फिर मेरा गाड़ी भर के लोग सुजुकी भर कर आए थे। ये कुछ इस तरह का वो चुटकुले हुए थे। एक तो ये मेरा काफिला हुआ था, और दूसरा एक काफिला मैंने वो गुलाम मुल्ला नाम है कोई, वो अपने ठट्ठा शरीफ में कोई पहले, उसमें हम गए थे, बापू शरीफ भी थे हमारे साथ। तो अब वहां हम कहीं गए थे, मतलब तो कहीं रास्ते में हम बैठे होंगे वहां, तो मैं और बापू शरीफ एक जगह बैठ गए। तो बापू तो होशियार तो होते ना, बोले कोई जवान है ना, वो इधर उधर जा रहे हैं अपने यार, बैठ गए। तो उस वक्त मेरी उम्र चाहे वो भले वो, लेकिन वो जवानी भी तो नहीं थी ना, वो कई साल पुरानी बात है। तो यूं एक जगह हम मतलब पहुंचे वो मस्जिद में, और तो वहां बहरहाल मुझे जुम्मे में हम पहुंचे थे, तो पहचान लिया गया बाद में। फिर वो इधर उधर से लोग आना शुरू हो गए थे ठट्टा शरीफ के। डेट आई है नेकी की दावत देखने की 9 सितंबर 1993। 1984 के अंदर अमीर अहले सुन्नत साहब मदनी काफिले में सफर करने की साथ, असल में उस वक्त मदनी काफिला तो नहीं कहा जाता था उनको, उसमें सलीम मून भाई भी थे, और मीरपुर खास जो है हमारी रवानगी अमीर अहले सुन्नत के साथ हुई थी। वक्त भी कहा जाता था शुरू के दौर में। और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आता है कि मैं मदनी काफिले में कोसी गया था, वहाँ के इमाम साहब जो थे सुबहानी साहब, उन्होंने फरमाया कि अमीर अहले सुन्नत पहला मदनी काफिला जो है मैंने दावत पेश की थी उन्हें उनसे अर्ज की थी, तो वो तशरीफ लाए थे खोसी के अंदर, 3 दिन यहाँ क़याम फरमाया हमारी मस्जिद में, और वजीर हुसैन बापू भी उस वक्त साथ थे। वहीं उसी मदनी काफिले में उनकी दाढ़ी बढ़ना शुरू हुई थी। आइए वो उसकी बदी सुबहानी साहब ना,
मरहूम अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, इन्होंने मुझे दावत दी थी और मेरा वाकई है ना कि पहला हमारा मदनी काफिला ये वहीं गया था, खोस्की का नाम भी नहीं सुना था हमने, खोस्की शुगर मिल, तो ये बदीन में, जिला बदीन में, तो बदीन में भी हमने वहाँ शायद वो बयान किया था शायद, लेकिन असल वो खोस्की में था। तो खोस्की में वाकई हम लोग गए थे और ये सुबहानी साहब का बड़ा मुतासिर कुन अंदाज था, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, हमारे शुरू के मुबल्लिग थे। नेकी की दावत 93 में लिखी गई थी। इसका एक बहुत तफसीली वाक़या है। अमीर सुन्नत और तमाम हैदराबाद से लेकर कराची के तमाम जिम्मेदारान, बड़े बापू भी थे, हमारे अली भाई भी थे जो इस वक्त रुकने शूरा हैं, और हमारे हाजी गुल अहमद भी थे, और सिंध के एक गोट में गए थे और वहाँ ये नेकी की दावत लिखी गई थी। और उस मदनी काफले में, जब मदनी काफला नहीं कहा जाता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी भी शिरकत थी अमीर सुन्नत के साथ, और वहाँ पर वो नेकी की दावत लिखी गई थी पूरी, जो फिर नेकी की दावत पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़कर सुनाई जाती थी। इरफान मूसा अत्तारी, अरब इमारात, दुबई से अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये फिर हो सकता है दूसरे काफले में हुआ होगा। जो पहला काफला था वो गुलाम उल्लाह जहाँ गए थे हम, गांव का नाम था। तो ये थे कि ये इसी के बाद 91 में आया, उसके बाद ये 93 के आसपास ही आपने मुझे पेपर दिया था कि इन्हीं फोटो को भी कराए जो। सुफियान भाई शायद थे आपके साथ या कोई थे? सुफियान एक गुलिस्तान मुस्तफा के, इन्होंने सबसे पहले ये नेकी की दावत याद की थी, ग्रीन पेन से आपने नेकी की दावत लिखी थी, और इन्हीं के जरिए या सुफियान भाई के जरिए फिर ये कलम हाफिज हनीफ साहब जो हमारे यहाँ तरावियाँ पढ़ाते हैं, इन तक पहुंची थी। ये आ रही है पूरी हिस्ट्री जो है ना, वो बयान की जा रही है नेकी की दावत तहरीर करने के ताल्लुक से। माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, ये जो अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, ठट्ठा के करीब गोट गुलामुल्लाह एक छोटा सा गांव है, उसमें ये काफिला गया था। शहीद मस्जिद खारादर से निकले थे फजर के बाद, तकरीबन 93 की बात है, और उस वक्त मैं कराची शिफ्ट हो गया था और लांढी की जिम्मेदारी दी थी मुझे अमीर अहले सुन्नत ने और बापू शरीफ ने। तो शहीद मस्जिद खारादर सुबह हमारी तरबियत हुई, मकीब भाई अमीर काफिला थे, बापू शरीफ भी थे, और शायद अलहाज गुल अहमद कादरी साहब भी थे, और शहीद मस्जिद से फिर यहाँ ली मार्केट की तरफ गए, और एक नॉर्मल SRTC लोकल बस चलती थी, उसमें बैठकर ठट्ठा की तरफ गए। फिर वहाँ से एक खुली सुजुकी में काफिले वाले बैठे, तकरीबन 17 शुरका थे। तो अमीर अहले सुन्नत को आगे बिठाया, अमीर अहले सुन्नत आगे नहीं बैठे और पीछे ही बैठे, क्योंकि धूप भी निकल चुकी थी, गर्मी भी थी। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि नहीं, मैं इस्लामी भाइयों के साथ ही बैठूंगा। तो खुली सुजुकी में अमीर अहले सुन्नत बैठे, धूप तेज थी, तो फिर किसी इस्लामी भाई ने चादर ऊपर करके और वो साया कर लिया। फिर बहरहाल मस्जिद में पहुंचे थे, तो वो गांव की मस्जिद, तो मस्जिद तो खैर मस्जिद है, लेकिन वो वहाँ का जो माहौल था, कबूतर थे और कबूतरों के पर और इस तरह ये। तो अमीर अहले सुन्नत को यहाँ तक देखा कि मस्जिद में सफाई करते हुए और अमीर की इताअत करते हुए इलाकाई दौरे में हमारे साथ शामिल हुए, नेकी की दावत लिखी गई वहाँ पर, और ये सारे मामलात थे। और इशा की नमाज के बाद भी इनफरादी कोशिश करके लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में लाते। तो एक दिन तो ऐसा था कि इस्लामी भाइयों ने वुज़ू किया और उनको अमीर अहले सुन्नत नमाज का तरीक़ा सिखा रहे थे। तो फरमा रहे कि नमाज का तरीक़ा तो सीखना ही है, इशा का वक्त अभी चल रहा है, तो इशा नहीं पढ़ी तो पढ़ लें। वो जब नमाज पढ़ने के लिए सजदे में गए, उस वक्त अमीर अहले सुन्नत ने हाथ उठाए कि अल्लाह इनके जिस्म तो झुके, इनके दिलों को भी अपनी बारगाह में झुका ले। और फिर वहाँ से जब ये काफिला पलटा था, तो शहीद मस्जिद खारादर में बाकायदा ये नेकी की दावत का प्रैक्टिकल किया था और बाहर निकल कर यूँ इलाक़े दौरा किया था। तो उस वक्त एक नई चीज़ थी और लोग बड़ी हैरत से ये देख रहे थे, सुन रहे थे। तो जो मुझे याद पड़ता है ये मैंने अर्ज़ किया। माशाअल्लाह। अमीर सुन्नत के एक बहुत पुराने दोस्त और बहुत पुराने साथी, उन्होंने अपने जज्बात जिस अंदाज से भेजे हैं, आइए सुनते हैं।
अब्दुल अहमद कादरी जियाई की जानिब से अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज बिलखैर फरमाए। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना, आपके दोस्त अहबाब मुरीदीन को दीनों दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। नाचीज़ को अपने हुस्ने ज़न में नेक गुमान करना, अल्लाह ताला आपकी मीठी मीठी ज़बान को मुबारक करे और दुआ करे कि अल्लाह ताला हकीकतन मुझे नेक बना दे। जनाब तौफीक इंजीनियर साहब, जनाब जुबैर इंजीनियर साहब, जनाब अब्दुल वाहिद साहब और सैयद अब्दुल कादिर साहब रहीमहुल्लाह ताला, जो अब हम में मौजूद नहीं, सभी उसने फरासत के आमिल मुहिब्बे दीन मतीन, आपकी क़यादत में अहले सुन्नत के लिए पेश पेश रहने वाले जानिसार साथी। रही मेरी बात तो आपकी मोहब्बत और निगाह करम ने मुझ जैसे को साथ रखा। आपको याद होगा कि मेरी सुस्ती और कायली की बिना पर मुझे धक्का स्टार्ट कहा करते थे। अमीर अहले सुन्नत की तबलीगी सरगर्मियाँ सिर्फ इज्तिमात व बयानत तक महदूद न थी, बल्कि आप अवामुन्नास को पाबंदे सोम व सलात और मुत्तकी परहेजगार बनाने के लिए इन पर इनफरादी कोशिशों में मसरूफ नजर आते। यही वजह थी कि उस वक्त कठिन में भी आपके गिर्द नौजवानों का एक तबका जमा हो गया, जो अपने चेहरे पर दाढ़ी की सुन्नत सजाए हुए नजर आता। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा हो तो शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में बनफ्से नफीस दावत देते नजर आते। सालाना इज्तिमा हो तो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बनफ्से नफीस दावत देते नजर आते। अब सिक्योरिटी के पेशे नजर, क्योंकि आप जैसे अहले इल्म, नेक, मुत्तकी, परहेजगार मुसल्लाह कौम पर भी कातिलाना हमला हुआ, बनफ्से नफीस सरगर्मियों में एहतियात का दामन थामना पड़ा। मदरसतुल मदीना व जामियतुल मदीना में सैयद अब्दुल कादिर साहब रहमहुल्लाह ताला का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत और इनके रफ़क़ाए दीन मतीन की खिदमात मुखलिसानों को कबूल फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस नसीब फरमाए, आमीन बिजाइन नबील करीम। आखिर में अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इल्तिजा है, इस सरापा पुर तकसीर से इन कलमात की अदायगी में कमी कोताही रह गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने इस धक्के स्टार के लिए दुआ कीजिए कि वो भी सेल्फ स्टार्ट, बर्क रफ्तार और किसी काम का हो जाए। अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। अपने कोई फजाइल बयान करे, उसकी हौसला अफजाई करूँ और फिर कमी कोताही माफ करूं, या जितनी ज्यादतियां की उसको माफ करूं कि बड़ा चढ़ा कर क्या क्या बना दिया मुझे। वैसे ये खुद भी इंजीनियर है, हाजी गुल अहमद हमारे बहुत करीबी दोस्त, हाजी गुल अहमद और बापू शरीफ और हम लोग यानी कि बहुत यानी कि साथ हमारी तरकीबें काफी रही है। अल्लाह बापू शरीफ को भी गरी के रहमत फरमाए, इसमें कोई शक नहीं। दावत इस्लामी में इनका बहुत बड़ा काम रहा है, बहुत ही बड़ा काम रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मेरा बेटा है हंजला अख्तारी, इन्हें जो चोट आ गई थी सर पे और ये कुछ यहाँ पर जो है वो 3 टांके भी लगे। घर में जब ऐसा कोई मामला हो जाता है तो अब घर पे अगर सिर्फ और सिर्फ घर वाले ही मौजूद हो तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड किट हाँ, तो ये रखना मुनासिब लगता है घर में। बात बहुत कैलकुलेटेड है कि सबको कुछ ना कुछ फर्स्ट एड की घर में ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो हल्की फुल्की पट्टी वगैरह करके इब्तदाई तिब्बी काम सर अंजाम दे सके। है थोड़ा सा आजमाइश, क्योंकि आता नहीं है और बाज़ ऐसे लोग हैं जिनका शायद आपको भी पता नहीं, आपके भी इल्म होना चाहिए या होगा कि खून देकर उनको चक्कर आ जाते हैं। जी ये तो अब देखो ना, अशादो के लाखों में कोई तो वैसे उस वक्त घबराना नहीं चाहिए, अपने यानी के होश कायम रखने चाहिए। मेरे को अपना वाक़या याद आ रहा था, मैं उस वक्त कहीं बाहर से आया था, खाना खा के आया था, कोई लंगर का खाना खा के आया था। अभी घर में आया था, मैंने चाय पतीली घर में रखी, चाय की चूल्हे पर, और अचानक वो घर पे दस्तक पड़ी। वो
दरवाजा खोला मैंने, पुलिस वाला था सादा वर्दी में, और उसने मुझे शॉकिंग न्यूज दी कि तुम्हारा भाई वहाँ हैदराबाद में ट्रेन में कट गया है। अब मेरे लिए तो बिल्कुल, मुझे तो कुछ होशो हवास आदमी के गुम हो जाए, और इस तरह उसने वो पढ़कर वो सुना और बेचारा वो पुलिस वाला चला गया। अब डायरेक्ट मुझे क्या करना चाहिए उसको? एकदम मेरी अल्लाह ने मुझे काबू दिया अपनी सोच पर, और मैंने फौरन वो चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद कर दिया, मैं कहा चूल्हा अगर जलता रहेगा तो पतीली उबलती रहेगी और कुछ का और कुछ ना हो जाए। तो ये अल्लाह ने मुझे समझ दी कि ये मैं कर दूं, और शायद फिर मैंने खबर दी अपनी, जो उस वक्त मेरी माँ भी शायद पता नहीं कहीं गई थी या क्या था, तो वो मैंने खबर दी घर में कि ऐसा ऐसा हुआ है, या पहले खबर दी और मैंने फौरन वो चूल्हा बंद कर दिया। और भी कुछ इक्का दुक्का कुछ करना चाहिए, ऐसा बंद करना, रखना, ढकना, शायद ये भी मैंने किया होगा कि अब लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। लगे मेरे लिए ये पहला मौका था कि घर में मैयत होती है, एक बार हो जाती है तो थोड़ा तजर्बा हो जाता। मेरा पहला ही ये इत्तेफाक था कि मेरे घर में मेरे होशो हवास में इस तरह हुआ था। ये कभी भी बच्चा गिर जाए हो जाए तो वो वावेला मचाएंगे तो वो बच्चा कुछ और नुकसान उसका हो जाए, तो उसको संभालने वाली करनी है। हिकमत अमली के साथ जख्म है तो उस पर कोई कपड़ा रख दिया जाए पाक साफ, कि वो खून मजीद ना बहे, और फिर ये कि फर्स्ट एड की अगर कोई सूरत है तो ठीक है, वरना फोन कर दे किसी को ऐसे को कि जो इसको बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, या खुद ले जाए करीबी हॉस्पिटल में, और जल्दी जल्दी इसकी कोई भी सूरत करें ऐसी इलाज की, वरना खून ज्यादा बह जाने की वजह से भी वो फौतगी हो सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू है तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू है तार की।